सबको मेरा नमस्कार। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। Yes, sir. तो हम का पाठ करेंगे और उनकी चर्चा करेंगे। तो ये 3 वर्सेस एक ही साथ आते हैं। सक वत्थु इनका कलेक्टिव नाम है और बेसिकली इट इज़ अ स्टोरी ऑफ सबका द किंग ऑफ गॉड्स and the incident happened near the village of Velua. So about 10 months before the Buddha realized Parinibbana, the Buddha was spending the Vasa at Velua village near Vaisali. भगवान के परिनिर्वाण के 10 महीना करीब 10 महीना पहले वो वेलू विलेज के में वैशाली के निकट एक विलेज है वेलू विलेज, उसमें अपनी वासा का समय बिता रहे थे, वहाँ साधना कर रहे थे। While he was staying there, he suffered from dysentery. तो वहाँ पर ठहरते हुए कुछ आकर उनको काफ़ी सीवियर डिसेंट्री हो गई। When Sukha learned that the Buddha was ailing, he came to Velua village so that he could personally nurse the Buddha during his sickness. जब शकदेव को राजा को पता लगा इसके बारे में कि भगवान बुद्ध बीमार हैं, तो उस काम में आए सो दैट वो पर्सनली भगवान बुद्ध की केयर कर सके, उनकी नर्सिंग कर सके इस बीमारी में। The Buddha told him not to worry about his health as there were many bhikkhus near him. भगवान बुद्ध ने उनको बोला कि यहाँ बहुत भिक्खु हैं जो मेरा ध्यान रख सकते हैं, इसलिए ज़्यादा वरी करने की आवश्यकता नहीं है। But Sukha did not listen to him and kept on nursing the Buddha until he recovered. लेकिन शक राजा ने उनको नहीं छोड़ा और जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो गए, भगवान बुद्ध के पास उनकी नर्सिंग करने में समय लगाया। The bhikkhus were surprised and awestruck to find Shak himself attending on the Buddha. तो भिक्खुस के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि इतना बड़ा देवताओं का राजा भगवान बुद्ध की सेवा पर्सनली कर रहा है। When the Buddha heard the remarks, he said, "Bhikkhus, there is nothing surprising about Shaka's love and devotion to me." उन्होंने उसको समझाया कि इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। Once when the farmer Shak was growing old and was about to pass away, he came to see me. एक बार की बात है जब जो पहले इंद्र देवता थे, शक देवता थे, वो काफ़ी बूढ़े हो रहे थे और was about to die, तो वो उनके पास आए, उनको मिलने आए। Then I expounded the Dhamma to him, फिर मैंने उनको धर्म समझाया। While listening to the Dhamma, he attained Sodapati fruition. Then he passed away and was reborn as a present Shaka. तो वो उनको सोतापति फल प्राप्त हुआ। फिर मरने के उपरांत he was again reborn as a present Shaka. All this happened to him simply because he listened to the Dhamma expounded. और ये केवल इसलिए हुआ कि उन्होंने जो धर्म मैंने Indeed, because it is good to see the noble ones. तो शायद इसी कंटेक्स्ट में मैंने कहा क्योंकि शक उनसे आके मिले थे और धर्म समझा था, तो भगवान उस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, It is good to see the noble ones. It's a pleasure to live with them. To live with fools is indeed painful. And then the Buddha spoke these verses. कि अच्छे नोबल वाइस लोगों के साथ रहना फायदेमंद है, लेकिन मूर्खों के साथ रहना बहुत पेनफुल होता है, और वर्सेस में भी यही बात कही गई। So it's a set of
three verses which I'll take up now. तो पहला वर्स है साहु दसनम अरियानं सन्निवासो सदा सुखो अदसनेन बालानं नित्यमेव सुखी सिया. इसका लिटरल मीनिंग है good is it to see the noble ones, dasanam ariyanam. To live with them is ever blissful. Sannivaso sada sukho adasnen balanang nityameva sukhi siya. One will always be happy by not encountering fools. So that is the first verse. The second verse is Bala Sangata Sangatacharihi Digamadhan Sochati Dukho Balehi Samvaso Amite Neva Sabda Dhiro Cha Sukha Samvaso Nyating Nangva Samagamo. The meaning है, indeed, he who moves in the company of fools, Bala Sangatchari, Dighamadhana Sochati, grieves for longing. Association with fools is ever painful. Dukkho balehi samvaso. Association with fools is balehi samvaso, is ever painful. Amiten eva sabda, like partnership with an enemy. But association with the wise is happy, like meeting one's own kinsman. Nyati nam vasamagamo, जैसे कि अब अपनों में ही रह रहे हैं. So these are the first two verses. If you want, you can have a look at them. But the third verse is on the next slide. All right, go to the next slide. Third verse is related verse. Tasmahi dhiranch panchanch bahusutanch dorehasilang vatvatang vatvatang ariyang tang tang suritang sumedhang bhajetana pathang vachandima. Therefore, follow the noble one, who is steadfast, wise, learned, dutiful, and devout. One should follow only such a man who is truly good and discerning, even as the moon follows the path of the stars. I will quickly go through the same verses with Ajahn Menindo's slightly nuanced translation. It's not a line-by-line translation. So Ajahn Menindo की translation है पहले verse में, it is always a pleasure not to have to encounter fools. It is always good to see noble beings and a delight to live with them. दूसरे वर्ष में उनकी ट्रांसलेशन है tedious is the company of fools, always painful, like being surrounded by enemies. So amit nev sabda का शायद उन्होंने वर्ड उसको enemies बनाया है. But to associate with the wise is like being at home. Nyati nam vasamagamo. अपनों में या घर की तरह.
और थर्ड वर्स का उन्होंने लिखा है, यू शुड फॉलो द वेज ऑफ दोज हु आर स्टेडफास्ट, डिसर्निंग, प्योर एंड अवेयर, जस्ट एज द मून फॉलोज द पाथ ऑफ द स्टार्स। तो ये तो वर्सेस है और उनके मीनिंग्स थे। अगर आप कुछ इसमें से किसी वर्स के बारे में या कुछ चर्चा करना चाहें तो प्लीज फील फ्री। एक बार फिर से प्रोजेक्ट कर देता हूँ। So then we come to some reflections. मेरी रिफ्लेक्शन कलेक्टिव है on all three verses together और as usual थोड़ी सी longish भी है, so please pardon my tendency to be verbose. तो जो मेरे मन में विचार आए इन 3 वर्सेस को पढ़ने के बाद वो कुछ इस प्रकार है। जैसा कि हम जानते हैं भगवान का एक कथन था, फ्रेंडशिप इज नॉट हाफ बट द होल ऑफ होली लाइफ, सेड भगवान टू वेनरेबल आनंद। ये सब वेरी फेमस कोटेशन हमें मालूम है सुता से। और जो पवित्र जीवन है, होली लाइफ है, उसमें फ्रेंडशिप का इतना महत्व है कि वो आधी नहीं बल्कि पूरी लाइफ ही उसको समझा जा सकता है, होली लाइफ को समझा जा सकता है। The reference to friendship here is to friendship of the noble ones. Obviously, इस फ्रेंडशिप में जो बात हो रही है, यहाँ भी नोबल वंस की फ्रेंडशिप की ही बात हो रही है, जैसे कि इन वर्सेस में है, और इनको हम कल्याण मित्रास भी बोल सकते हैं। Because it is कल्याण मित्रास whose company can help avoiding pitfalls of ignorance or of unskillful conduct. अगर हम कल्याण मित्रास के बीच में हैं तो हमें मालूम है कि हम कुछ गलती करेंगे तो हमें करेक्शन मिलेगी उसकी। कुछ भी अनस्किलफुल करेंगे या कुछ हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो वो हमें समझा पाएंगे। Such friends can guide or admonish us for our good and ensure that we do not go astray. तो ऐसा होने से हम भटकने से थोड़ा बच जाते हैं। Such friends are indeed a real blessing on the path and help us immensely in developing wisdom. So ये तो बहुत वेल नोन बात है, भगवान ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि कल्याण मित्रस की कितनी इंपॉर्टेंस है साधना के रास्ते में। Company of the unwise, on the other hand, will invariably lead us astray, even as we make sincere efforts to walk the path. लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है वो थोड़ा सा अनवाइज लोगों के साथ है जो ठीक से समझते नहीं है पाठ को, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि हम भटक जाएं। हालांकि हमारा एफर्ट सिंसियर हो, लेकिन भटकने के चांसेस। Not possessed the samadhi of the wise, they do not have the basic understanding of the Dhamma laws and will, in most cases, be more interested in the sense world of pleasures than the path of renunciation that leads to freedom and liberation of the mind. क्योंकि उन ऐसे लोगों में जो राइट व्यू का विजडम है वो नहीं है, और क्योंकि वो धम्म को ठीक से नहीं समझते, और इन सच केसेस इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट इनका जो इंटरेस्ट है वो सेंस वर्ल्ड में ज़्यादा है, सेंस वर्ल्ड प्लेजर्स में ज़्यादा है, ना कि पाथ ऑफ रिनंसिएशन जो कि मुक्ति के लिए एसेंशियल है, टेक अस टू फ्रीडम एंड लिबरेशन ऑफ द माइंड। और जैसा कि हम जानते हैं, जो पाथ टू लिबरेशन इज बिसॉट विद डिफिकल्टीज, इट्स नॉट एन इजी पाथ। What is needed is steadfast progress on the fold effort of virtuous conduct. शील में हमें
बहुत प्रज्ञाशील, बहुत अच्छी से उनकी पालन करना है शील का। फिर समाधि हमारी अच्छी होनी चाहिए, डेवलपिंग डीप समाधि, एबिलिटी टू सी द रियलिटी ऑफ ऑल एक्सपीरियंस विद पेनिट्रेटिंग विजडम। अच्छी समाधि होगी तभी हम यथाभूत दर्शन, यथाभूत ज्ञान दर्शन हम ठीक से कर पाएंगे। अराउजिंग ऑफ डिस्पैशन एंड डिसएंचेंटमेंट बेस्ड ऑन जेन्युइन इंसाइट। और जब उस पेनिट्रेटिंग विजडम के साथ हम यथाभूत ज्ञान दर्शन कर पाएंगे तो हमारी अंदर जेन्युइन इंसाइट पैदा होगी, और जिससे डिस्पैशन और डिसएंचेंटमेंट हमारे मन में आएगी, एंड ऑफ द अर्ज टू रिनंसिएट एंड लेटिंग गो। तभी हमारे मन में वैराग्य की भावना आगे तेज होगी ताकि हम मुक्ति की ओर बढ़ सके। क्योंकि ये सब करना काफी मुश्किल है, इसीलिए कल्याण मित्र का बहुत आवश्यक है हमारे आसपास होना। Having Kalyan Mitras themselves committed to the path can be of mutual benefit and joy. As an example, मेरे मन में चाह रहा है कि imagine the mutual joy of and how they help each other on the path, even as they had the good fortune of the guidance of Bhagwan himself. तो ये उदाहरण हमारे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकता है, उन दोनों की फ्रेंडशिप जो थी आपस में। तो मेरे मन में ये विचार आए जो आपके सामने है। अगर आप कुछ कहना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें, या कुछ अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट देना चाहें, प्लीज़। ठीक है, अब मैं अजान मनिंदो की रिफ्लेक्शंस पर चलता हूँ। उन्होंने तीनों वर्सेस की अलग अलग रिफ्लेक्शंस दी है, तो हम उनको ध्यान से देखते हैं। तो पहले वर्स में जिसको उन्होंने count of fools, it is always noble beings and to live with them। तो कहते हैं, we may or may not be blessed with the good fortune of living with noble beings। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव लिया है यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट all we can all make the effort to cultivate noble mind states। तो हम, हो सकता है हमारे we may or may not have the good luck कि भी हम नोबल बींग्स का साथ कंपनी हमें मिले, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो हम अपने माइंड में जो हमारी हमारी जो माइंड स्टेट्स हैं, जो उसकी डेवलपमेंट है, ऐसा करें कि वो नोबल स्टेट्स में ज़्यादा रहे और इग्नोबल स्टेट्स में कम रहे। माइंड सेट्स आर सिमिलर टू लिविंग बींग्स, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो ऑलमोस्ट लिविंग बींग्स की तरह ही हमारे साथ रहती है, rather more than the living beings in some sense, because it is always with us. When they are wholesome, when the mind states are wholesome, it is a joy to have them. When they are foolish, they can be very hard work indeed। और हम सबको मालूम है कि हम दोनों तरह की माइंड स्टेट से गुजरते हैं, और जब वो होलसम होती हैं तो कितना आनंद आता है, जब वो बेवकूफ़ी वाली होती हैं तो कितना मुश्किल होती है हमें। If we establish such qualities as gratitude, forgiveness, kindness and discernment in our minds, तो वो जो नोबल फ्रेंड की बात थी वो अपने मन में ही अगर आप पैदा कर ले, ये सब क्वालिटीज़ अपने मन में ही पैदा कर लें, तो we'll be able to dwell in delight even when external conditions are difficult। तो basically be a good Kalyan Mitra to yourself। I think this is a sense of this reflection that I see। If you develop your mind properly, you can be a good Kalyan Mitra to yourself।
सेकेंड वर्स है, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। टीडियस इज द कंपनी ऑफ फूल्स, always painful, like being surrounded by enemies, but to associate with the wise is like being at home. तो अजन मुनिंदो कहते हैं, we don't need to pretend we enjoy the company of those who challenge our commitment to integrity. So basically, अगर हम ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जहां अपनी इंटीग्रिटी भी नहीं मेंटेन कर पाए ठीक से, वो भी मुश्किल हो जाए, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन. We can be honest with ourselves that at times it is tedious. हम जानते हैं कि कितना मुश्किल है वो काम, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, जब most of our companies of a different kind. Such honesty in fact contributes to strengthening equanimity. If we can maintain that honesty, then हमारे मन में समता आएगी. But even equanimity, however, won't protect us from feeling undermined or uncomfortable. हम उस अवस्था तक भी पहुंच जाए, अगर हम हमारी कांस्टेंट कंपनी ही ऐसे लोगों में रहेगी, तो वो इकोनॉमिटी भी शायद हमारे काम नहीं आए, वो भी अंडरमाइन हो जाए. इट विल मीन दो दैट वी आर नॉट सो ड्रेन्ड बाय आवर प्रेफरेंसेस, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग. तो समता होने का फायदा होगा, लेकिन मुश्किल भी होगी. द वाइज ऑलरेडी नो दिस, विच इज़ वन रीज़न वाई देयर कंपनी इज सो अपीलिंग. लेकिन अगर हम वाइज लोगों के साथ हैं, so we'll be at home because they are precisely doing the same thing, that are striving to do the same thing that we are striving. और उनका नेक्स्ट रिफ्लेक्शन इस वर्स पे है. एक्चुअली इस वर्स के उन्होंने दो रिफ्लेक्शंस दिए हैं, तो काफ़ी सिमिलर ही हैं, थोड़ी सी अलग है मामूली, here and there. So I will read only one of them. So the third verse was, उसका मीनिंग ये था, you should follow the ways of those who are steadfast, discerning, pure and aware, just as the moon follows the path of the stars. तो उनकी रिफ्लेक्शन इस प्रकार से है इसमें. Gazing up at the night sky, we might perceive a random scattering of specks of light. हमें लगेगा कि जो आसमान के तारे हैं कितने रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कुछ उसमें हमें नज़र नहीं आएगा, सार नज़र नहीं आएगा. और वी माइट रिकॉग्नाइज एन ऑर्डरिंग ऑफ द स्टार्स, लेकिन हम उनमें पैटर्न्स भी देख सकते हैं, तरह तरह के हम क्या बोलते हैं उनको, नक्षत्र बोले जाए या फॉर्मेशंस देख सकते हैं उनकी. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वी हैव स्टडीड द सब्जेक्ट. अगर हम कितना डीपली हमने उनको देखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. वेदर द अपरेंट chaos of our world defines our experience of life depends on how much we have learned about truth and dhamma. तो इसी तरह से हम जीवन के एक्सपीरियंस जो काफ़ी क्योटिक लगता है, हम उस यही सोचे कि बिल्कुल क्योटिक है, या उसे हम उससे कुछ आगे बढ़ें, तो वो डिपेंड करता है कि हमने ट्रुथ के बारे में या धम्मा के बारे में कितना पढ़ा है. क्योंकि अगर हम धम्मा को समझेंगे तो वील सी देयर इज ऑर्डर विद इन द अपरेंट chaos, बट वी मस्ट लुक केयरफुली टू डिसर्न इट. तो हमें, जैसे कि हमें भगवान की शिक्षा से पता लगता है कि हाँ, लगता तो बहुत रैंडम है, लेकिन इस रैंडमनेस में भी एक ऑर्डर है, जो चाहे वो आप पटिच्चा समुपात की बात करें या फोर नोबल ट्रुथ्स की बात करें, वो एक ऑर्डर है जो इस सारे क्योटिक पैटर्न में हम देख सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें और समझें. The Buddha's very first discourse, Turning the Wheel of Truth, points directly at that order within chaos that needs to be recognized to make sense of life. अगर हम इसको ठीक से देख पाएँ, जैसे कि भगवान बुद्ध ने हमें इस डिस्कोर्स में समझाने की कोशिश की,
तो हमें लाइफ की सेंस समझ में आने लगती है। दिस सटल एंड प्रोफाउंड टीचिंग इज अ फोर नोबल ट्रूथ्स। तो ये उनकी रिफ्लेक्शन है। इसी स्पिरिट में अगली रिफ्लेक्शन भी है, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ बिकॉज इट्स क्वाइट सम टाइम नाउ। सो अगर आप किसी भी एस्पेक्ट ऑफ इस प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहें, चर्चा करना चाहें, यू वेलकम। सर, एक छोटी सी बात पूछनी थी। आपने अपने रिफ्लेक्शन में 5 फोल्ड एफर्ट्स लिखा। जी मैं बताता हूँ। हाँ, तो ये 5 फोल्ड एफर्ट्स आपने मतलब एक्चुअली ये भगवान की देशना ही ऐसी है, लेकिन शायद उन्होंने 5 फोल्ड वर्ड यूज नहीं किया हुआ। लेकिन उनका एक सूत्र में मैंने देखा था कि उन्होंने ये बताया कि अगर आप में शील नहीं होगा तो समाधि नहीं हो सकती। अगर समाधि नहीं हो पाएगी तो आप यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं कर पाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे तो आप में वैराग्य नहीं आएगा और डिसेंटमेंट नहीं आएगी, निब्बिदा नहीं आएगी। और वो नहीं आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो मैंने उसी को इस ढंग से लिखा है। मे बी ये 5 फोल्ड वर्ड कैन बी मिसलीडिंग, क्योंकि देयर इज एन 8 फोल्ड पाथ एंड आई एम यूजिंग ए 5 फोल्ड एफर्ट। लेकिन सिंस इसमें 5 कंपोनेंट्स थे तो मैंने इसीलिए ये वर्ड शायद यूज कर दिया 5 फोल्ड। बट दिस इज गुड सर। 4 नोबल ट्रुथ पता है, 8 नोबल पाथ पता है, 7 भुजंग पता है, अभी 5 फोल्ड एफर्ट्स भी पता है। ये 5 फोल्ड एफर्ट इज नॉट भगवान का phrase, so please don't put it in that category. But yes, this what I have put here actually follows from one of his suttas. It actually is directly said in one of his suttas कि ऐसे सर, इसके ये बिना ये नहीं होगा, उपनिषद। इसके बिना ये नहीं होगा, यस, इसके बिना ये नहीं होगा। यस, यस। आई थिंक उपनिषद का ही है शायद पेंडेंस। हाँ, शायद एक दो जगह आता है, मुझे सुत का एकदम रेफरेंस याद नहीं आ रहा, वहीं से देखा था मैंने। और दूसरा सर, एक मेरा पॉइंट गया था जिसमें लास्ट वाले में था भजेत। वो भज धातु आया ना, हमारे का क्या काफी यूज होता है ना, भज, भजेत, चंद्रमा वाला। तो वो सबसे लास्ट वाली स्लाइड में, तो वो थोड़ा सा ग्रामर वाली बात आ गई, लेकिन उसका मतलब मेरे को बस पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ये भजेत वर्ड जो है ना, भजेत नखत पथम चंद्रमा, यहाँ पर फॉलो करने से मतलब हमारे यहाँ भजन होता है ना, भज गोविंदम, वही भजेत धातु है। एक्चुअली मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है ठीक से, मेरे पास यहाँ पर पॉली डिक्शनरी नहीं है, तो मैं कुड नॉट कंफर्म वेरी नाइसली एग्जैक्टली क्या मीनिंग बनता है इसका। राजेंद्र जी शायद कुछ कह पाए। राजेंद्र जी शायद। शायद ये बात। मैं देख रहा हूँ। एक मिनट। बजेत है, बजेती है एक तो शब्द, और उसी से निकला होगा बजेत। तो ये डिवाइड्स और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उसके ऊपर में है ये, मतलब डिवीजन की बात है। बजेत का मतलब है हाँ, भज, डिवाइड दैट इज करना, राइट, मतलब। करेक्ट, दैट इज ऑल्सो ए मीनिंग। हाँ, तो इसका मतलब ये वर्ड्स जो है, भजेती है, भजेतु है, भजेत्वा है, और भजेतब्ब है। तो तीनों मतलब हर एक में डिवीजन की बात है। शुड बी डिवाइडेड, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो भजेत नखत पंथव चंदिमा। तो अब यहाँ कैसे इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते, मतलब नहीं, जैसे कि चंद्रमा नक्षत्रों के साथ अपनी वो तंग तादिसंग सुपरिसंग सुमेधन वजेथ नखत पंथ चंदिमा, that needs to be recognized to make sense of life. Subtle and profound teaching is the foreknown. मैं Just आई as the थिंक moon follows the path of the star. यहाँ पे थोड़ा मतलब I don't know, समझ जो में नहीं। उनका ट्रांसलेशन है
हाँ, वो वहाँ भी वही है, just as the moon follows the path of the stars. नहीं, ये तो अजान मुनिंदो का ही है, even as the moon follows the path of the stars. So सबने मीनिंग तो वही लगाया है इसका, लेकिन एग्जैक्टली किस सेंस में वो पाली शब्द ऐसे यूज किया गया वो क्लैरिटी मुझे भी नहीं है. Any other observations from anyone? Otherwise, I'll And try to close it. Vishal can say something about it if he can understand. विशाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? Actually, unfortunately, I don't understand that word. But I did enjoy Rajinder Ji's. He was narrating the whole thing, and that was beautiful to hear. The only thing I might say, the observation of the Kalyana Mithas is such an important one, but I think that sometimes one can confuse that to meaning that the holy life is one filled with friendship. But as the Buddha has also exhorted many times, that solitude, a monk who doesn't like solitude will never reach jhana. So, it is a very sort of a nuanced teaching when he says all of the holy life is friendship with. Yes, it can be easily mistaken to mean something different. That's right. Yeah. I think your caution is very, very appropriate. Right, sir. Thank you very much, and I'd like to close here. Thank you, sir. Thank you, everyone, for the observations. We can sit for meditation up to 6:55.